अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने किया सिद्दीपेट जिले का दौरा। हुस्नाबाद में कई तरक्याती कामों में लिया हिस्सा। कर्नाटक के इंतखाबी मंशूर में कांग्रेस ने बजरंग दल पर इम्तना आयद करने का किया वादा। बजरंग दल, BJP और दीगर जाफरानी तंजीमें बरहम। हैदराबाद के गांधी भवन पर बजरंग दल का एहतजाज। TSPSC पेपर लीक मामला। YS शर्मिला ने IT डिपार्टमेंट के खिलाफ बेगम बाजार पुलिस में की शिकायत। वजीर KTR और महकमों के अहदेदारों के रोल की तहकीकात का किया मुतालबा। आदिलाबाद कांग्रेस जिला सदर साजिद खान के घर पर बजरंग दल और BJP का एहतजाज। हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे जाफरानी तंजीमों के कारकुनों का साजिद खान ने किया इस्तकबाल। खुश्क मेवेजात, ठंडा पानी और खाने का किया इंतजाम। बरखी ट्रांसफार्मर के कॉपर कॉइल्स की चोरी के आदी मुजरिमीन गिरफ्तार। CCS LB नगर और भोनगिर पुलिस का कारनामा। 60 किलोग्राम ट्रांसफार्मर कॉपर कॉइल्स, 1 लाख रुपए नकद रकम और दीगर अशिया जब्त। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नक्श KT रामाराव ने आज सिद्दीपेट जिले के दौरे के मौके पर मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। उन्होंने हुस्नाबाद में कई तरक्याती मंसूबे भी शुरू किए। KTR हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए हुस्नाबाद पहुंचे और सीधे मिनी स्टेडियम की तरफ रवाना हुए। तकरीब में वजीर ने कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज़ किया, जिनकी मालियत 27 करोड़ 51 लाख रुपए बताई जा रही है। उनमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, ST वुमेंस हॉस्टल, TTC सेंटर, बस्ती दवाखाना और म्यूनसिपल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स शामिल है। इसके अलावा KTR ने हुस्नाबाद यलम्मा टैंक की खूबसूरती के कामों का संग बुनियाद रखा। वजीर मौसूफ ने यहाँ पर तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात और 1 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले इंडोर स्टेडियम का भी इफ्तिताह किया। హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గంలోని ఏ ఊళ్ళో ఏ ఇంటికన్నా ఉండ్రి పెద్దలు చెప్తారు, హనుమంతుని గుడి లేని ఊరు లేదు, అట్లే కేసీఆర్ సంక్షేమ పథకం అందని ఇల్లు హుస్నాబాద్లో ఎక్కడ లేదు అనే మాట అతిశయోక్తి కాదు. నేను ఉత్తగానే చెప్తలేను, లెక్కలు చూసుకునే చెప్తున్నా. ఇక్కడికి వచ్చే ముందే తెలుసుకున్నా, హుస్నాబాద్ నియోజకవర్గం ఒకప్పుడు సతీష్ అన్న చెప్పినట్టు దుర్భిక్ష ప్రాంతం, నీళ్లు లేని ప్రాంతం, రాళ్ళు గుట్టలు మెట్ట ప్రాంతం. రాష్ట్రంలో కరువు ఎక్కడున్నది అంటే ఇక్కడ ఉన్నది ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో, హుస్నాబాద్లో, సిరిసిల్లలో, మానకొండూరులో అని చెప్పే ప్రాంతం ఈ ప్రాంతం మొత్తం. ఇటు సిద్దిపేట, అటు దుబ్బాక, అవతలికి కామారెడ్డి, ఎల్లారెడ్డి, సిరిసిల్ల, వేములవాడ, ఇవతలికి మానకొండూరు, హుస్నాబాదు, ఇదంతా కూడా దుర్భిక్ష ప్రాంతం, మెట్ట ప్రాంతం. నెత్తురు గారిన నేల ఇది. ఒకనాడు నెత్తురు గారిన నేల ఈ ప్రాంతం, ఈ ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా. నెర్రెలు బారిన నేలలు, నెత్తురు గారిన నేలలు ఆనాటి పరిస్థితి. ఈరోజు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఆయన తీసుకున్న రైతు సంక్షేమ కార్యక్రమాల వల్ల ఇంత అద్భుతంగా అనిపించిందంటే ఇవాళ వస్తుంటే హుస్నాబాద్కు నేను, వినోద్ కుమార్ గారు హైదరాబాద్లో బేగంపేట విమానాశ్రయంలో ప్రారంభమై ఎగురుకుంటా హెలికాప్టర్ ద్వారా ఇక్కడికి వచ్చినాం. వచ్చేటప్పుడు గోదావరి నీళ్లు, పెద్దలు చెప్తారు, ఆనాడు భగీరథ మహాముని శివునికి ప్రార్థించి, మా దేవుడికి ప్రార్థించి శివునికి మొక్కి, అయ్యా ఇక్కడ చచ్చిపోతున్నాం నీళ్లు లేక, నీ నెత్తి మీద ఉన్న గంగను కిందికి ఇడిచిపెట్టు అంటాడు. ఆనాడు దివి నిండి భువికి తెచ్చినోడు ఆనాటి భగీరథుడు. పైకి వెళ్ళి కిందికి నీళ్లు తెచ్చిండు. కానీ కేసీఆర్ గారు ఇలా కింద ఉన్న నీళ్లను, కాళేశ్వరం దగ్గర ఉన్న నీళ్లను పైకి మళ్ళిస్తున్నాడు. అపర భగీరథుడి లాగా మన నెత్తి మీద ఇవాళ ఒక కల్ప వెళ్ళి, ఎంతో దూరం లేదు, ఇడికెళ్ళి పక్కనే ఉన్నది గౌరవెల్లి. మీ హుస్నాబాద్కు కల్పవెల్లి, గౌరవెల్లి ఈ ప్రాంత శాశ్వత కరువును తరిమేసే కల్పవెల్లిని హుస్నాబాద్ మీద ఒక నెత్తి మీద నిండు కుండబెట్టినట్టు శాశ్వతంగా హుస్నాబాద్ బిడ్డలకు కరువు నుంచి, కాటకాల నుంచి విముక్తి కలిగించిన అపర భగీరథుడు కేసీఆర్ గారు. హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడికి వస్తుంటే ఆ నీళ్లు, కాళేశ్వరం నీళ్లు, ఎక్కడ కాళేశ్వరము, ఎక్కడ హైదరాబాద్, 82 మీటర్ల కాడ సముద్ర మట్టానికి 82 మీటర్ల ఎత్తున్న కాళేశ్వరం నుంచి నీళ్లు తీసుకొని పైకి ఒక్కొక్క లిఫ్ట్ ద్వారా
618 మీటర్లకు అంటే 82 మీటర్లు ఎక్కడ कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटका असेंबली इंतखाबात के लिए अपने इंतखाबी मंशूर में बजरंग दल पर इम्तना आयद करने का वादा किया है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी और बजरंग दल की जानिब से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। इस ज़िमन में शहर हैदराबाद में वाक़ तेलंगाना कांग्रेस के सदर दफ्तर गांधी भवन के पास बजरंग दल के अरकान ने एहतजाज किया। गांधी भवन के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए बुलाए जाने पर बजरंग दल कारकुनान की कसीर तादाद यहाँ पहुँची थी, जबकि यहाँ एहतजाज के पेश नज़र पहले से पुलिस तैनात थी। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला ने जुमे को तेलंगाना रियासत के आईटी डिपार्टमेंट के खिलाफ बेगम बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में आईटी महकमों के मुश्तबा मुलव्विस होने के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की दरख्वास्त की। शर्मिला ने इल्ज़ाम लगाया कि एसआईटी चीफ मिनिस्टर की सरकारी रिहाइशगाह प्रगति भवन की हिदायत पर काम कर रही है, इसीलिए उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शर्मिला ने आईटी के वजीर केटी रामाराव महकमे के अहदेदारों के रोल की भी तहकीकात का मुतालबा किया। उनका कहना था कि इस केस में बड़ी मछलियां मुलव्विस हो सकती हैं। गजवेल तूपरान झील में डूबने की वजह से याखुदपुरा के रहने वाले 3 बच्चों का इंतकाल हो गया। मरहूमीन में 27 साला शेख कैसर, 17 साला सुहेल और 3 साला मासूम मुस्तफ़ा शामिल हैं। सदर मजलिस नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज याखुदपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने मरहूमीन के जनाजे में शिरकत की और अफराद ख़ानदान को तसल्ली दी। बता दें कि याखुदपुरा की लाल मोहम्मद साहब की मस्जिद में बाद नमाज जुमा नमाज जनाजा पढ़ाई गई और बाद में तदफीन अमल में लाई गई। तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड रुकन बंदगी बादशाह ने वक्फ बोर्ड मीटिंग में 134 एजेंडास की मंजूरी के बाद भी प्रोसीडिंग्स पर अमलावरी में ताख़ीर के बारे में बताया। और जो है किसी भी चीज को डेलिबरेट डिले करना तो जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, वो तो नहीं हो सकता है। देखिए रमजान, हम जो रमजान में मीटिंग करें और रमजान के मौके पे मसाजिद वालों को उनके कमेटियां डिक्लेयर हो गए तो वो ताकि अपने एक इंटरेस्ट से काम होता कि कमेटी भी पेंडिंग है तो रमजान में ही वो करे, मगर उसके बाद हमारा स्टाफ जो है वो रमजान के कपड़े डिस्ट्रीब्यूशन में बिजी हो गया, तो उसकी वजह से सारे सेक्शन वाले कपड़े बांटने में ईद तक बिजी रहे। ईद का हुआ, अब जाहिर बात है वो छिल्ला छट्टी बोलते नहीं, 5 जुमागियां बोलते ना, वैसी ईद के बाद भी जो है लोग अभी पेस पे आ रहे हैं, मगर पूरे 134 हो 134 एक हफ्ता नहीं 2 हफ्ते 1 महीने के अंदर इशू हो जाएंगे। उसको ऐसा कोई डिले तो ऐसा बस इन्फ्लुएंस के तौर पे प्रोसीडिंग इशू हो गए, हो रहे भी बात रुके हुए। देखिए बोर्ड रेजुलेशन पास करने के बाद किसी चीज को नहीं रोक सकते और सारे मेंबर पास करने के बाद बोर्ड इज सुपीरियर। कितने दिन रोकेंगे? अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क रोक रहे हैं, सेक्शन रोक रहे हैं तो कितने दिन रोकेंगे? और रोकेंगे तो जो है उसकी जो है मैं बोला ना जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। और जो है इसका जो भी सबब बनेंगे, मुताल्लिका क्लर्क हो या अहलकार हो या पीए हो, पीएस हो या जो भी असिस्टेंट सेक्रेटरी हो, सुपरिटेंडेंट हो, ये छोटी चीजें भाई अल्लाह के ने भी जवाब दे है ना, अल्लाह के ने भी जवाब दे। तो ये जिसकी प्रोसीडिंग आप समझिए बाजू 34 एजेंडा नंबर की रोक के 134 की दी गई और ये 34 वाले साहब जो फिर रहे हैं उनको अगर कोई खातिर खा नहीं सुन रहे तो वो सबसे पहली अदालत बोल रहा हूं भाई। अब आप लोग मेरे कहने जो है एकदम से आ गए, ये हमेशा आके मेरे पे जुल्म करते इंटरव्यू का, तो मैं जो है उसके बावजूद भी आपको जो है कुछ पानी चाय पेश कराना, तो अल्लाह के घर जाओ जी, अल्लाह खाली कैसा भेजता बोला। एक बंदा बगैर बोले जब आके आप कोई चीज आप कर रहे हैं तो मैं बात कर रहा हूं, अच्छा नहीं दिखता मेरे को, किसी को मैं नहीं देता हूं बोला तो क्या करते आप, मगर जो है उसके बावजूद भी जो है आपके सवाल का तशफ़ी बख्श जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं।
शहर हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में वाक़ दरगाह हज़रत अंबर शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह, जिनके नाम से इस इलाके का नाम रखा गया है, कि वक्फ अराजी पर हो रहे नाजायज़ कब्ज़ों को बर्खास्त करते हुए दरगाह के तहत वाक़ वक्फ अराजी का तहफ़्फ़ुज़ करने का दरगाह के खादिम मोहम्मद अब्दुल खदीर ने मुतालबा किया है। मैं खादिम हूँ, ये बारगाह अंबरपेट में है, हज़रत के नाम से अंबरपेट कायम किया गया है और ये औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह ज़माने से दरगाह कायम है। तब से हमारे ख़ानदान के लोग इससे खिदमत का अंजाम देते आ रहे हैं। इस दरगाह के तहत काफ़ी ज़मीन थी, काफ़ी लोग काबिज़ कर चुके हैं और उसके बाद अब मुख्तसर से ये है कि इस वक्त गज़ट के अंदर और सर्वे के अंदर 2161 का ज़मीन है, जो दरगाह के बाजू के हिस्से में गांधी का पुतला है, उस पर पड़ोसी एक भास्कर बोल के आदमी उसके ऊपर काबिज़ है और सामने पूरे मलगियाँ लगा के जो है सो उन्हें किराया वसूल कर रहा, लाइट का बिल वगैरह मीटर ले लिया है। तो हम बारह उसको तवज्जो दिलाने के बावजूद, वक्फ बोर्ड में बोलने के बावजूद कुछ भी नहीं होने की वजह से हम वक्फ ट्रिब्यूनल को गए और OS 39 ऑफ 2019 ट्रिब्यूनल ने हमको स्टे ऑर्डर मिला। स्टे ऑर्डर मिलने के बावजूद भी उन्हें कंस्ट्रक्शन जारी रखा हुआ है। तो हम वक्फ बोर्ड से अपील गुजारिश करते हैं कि फौरी इस मामले में मदाखलत करे और वक्फ बोर्ड में पार्टी बने और यहाँ पर आके जो है सो मदाखलत करके इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और दरगाह को कोई मुस्तकिल आमदनी नहीं है और अगर जिसको आमदनी आएंगे तो इंशाल्लाह दरगाह के और भी बहुत से काम बाकी है यहाँ पे, उसके लिए हम कुछ इंतजाम कर सकेंगे इंशाल्लाह। ये 2161 का ज़मीन है, ये करीब 800 का ज़मीन है और उससे बाद 2 बार रोड बनी हुई, तो वो अपने डॉक्यूमेंट बता के जो है वक्फ बोर्ड बल्दिया से जो है उन्हें पैसे कंपनसेशन अमाउंट भी ले लिया उन्हें। हम वक्फ बोर्ड को तवज्जो दिलाने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड पर कोई मदाखलत नहीं करी, तो कंपनसेशन अमाउंट भी जो है भास्कर ले लिया और उन्हें यही बता रहा है कि भाई बल्दिया वाले में कंपनसेशन अमाउंट दिए बोल के अपने आप को उन्हें दावा पेश कर रहा है, जबकि सर्वे रिकॉर्ड और गज़ट के हिसाब से दरगाह की ज़मीन है जो 2161 का ज़मीन है। दी करेला स्टोरी पर पाबंदी आयद करने के मुतालबे पर आज 5 मई को सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। इस मौके पर उन्होंने एहतजाज दर्ज करवाते हुए फिल्म के डायरेक्टर को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। 2 दिन पहले मैंने द केरला स्टोरी जो मूवी आज 5 मई को रिलीज़ होने वाली है, उसके ताल्लुक़ से मैंने चंद सवालात उठाए थे कि सोशल मीडिया में उस मूवी की जो पब्लिसिटी हो रही थी उसमें ये बताया गया था कि 32,000 हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाकर सीरिया और दीगर इस्लामी ममालिक और दाइश के पास उनको भेजकर वहाँ पर उनको दहशतगर्दी की तरबियत दिलाकर फिर दोबारा उनको भारत में लाकर यहाँ पर दहशत फैलाई जा रही है। ये उस मूवी का इस उन्वान से जो है ना बनाई गई है। तो मैं हुकूमत हिंद और हुकूमत तेलंगाना से मैंने 3 सवाल किया कि 32,000 अगर लड़कियाँ अपना मज़हब तब्दील किए हैं और इस्लाम कबूल कर दाइश के पास पहुँचे और फिर वहाँ से वापस आए, तो फिर हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी। साबिक वज़ीर आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने गौतम बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते पर चलने और पुरअमन ज़िंदगी गुजारने और इस अजीम इंसान के अज़ाइम को आगे बढ़ाने के लिए सख्त मेहनत करने का मशवरा दिया। उन्होंने आज जुमे के रोज़ अशोक सम्राट बुद्धा विहार कैलाश नगर में मुनक्किदा बुद्धा पूर्णिमा तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर के तस्वीरों पर फूल चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर अम्बेडकर जयंती उत्सव कमेटी के चेयरमैन दुर्गम शेखर ने प्रोग्राम के इनेकाद में ताउन करने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर एक रैली भी निकाली गई। गौतम बुद्ध और अम्बेडकर के लिबास में मलबूस बच्चे रैली में खुसूसी तवज्जो का मरकज बने रहे। इस मौके पर अम्बेडकर मेमोरियल एसोसिएशन के सदर बाबा साहब कामले, कायदीन दादा साहब, एम प्रहलाद, शैलेंद्र वाघमारे, शोभाताई तुलजापुरे के अलावा दीगर मौजूद थे। వారు చూపించినటువంటి ఏవైతే మనకున్నాయో మరి ఈరోజు కేవలం బుద్ధ భగవానుడు అంటేనే అందరం ప్రతి ఒక్క మనిషితో పాటు ప్రాణం ఉన్నటువంటి జీవరాశి గురించి ప్రాణం ఉన్నటువంటి ప్రతి జీవరాశి గురించి ఆలోచించినటువంటి వ్యక్తి
భగవాన్ బుద్ధుడు విశ్వం గురించి ఆలోచించిన వ్యక్తి. ఏ సమాజం గురించి, ఏ కులం గురించి, ఏ మతం గురించి ఆయన ఆలోచన చేయలేదు. విశ్వ సమాజం కొరకు, విశ్వంలో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్క మనిషి యొక్క, జీవి యొక్క, ప్రాణి యొక్క ఆలోచించేటువంటి వ్యక్తి మన యొక్క బుద్ధ భగవాన్. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। कांग्रेस पार्टी की जानिब से कर्नाटका असेंबली इंतखाबी मंशूर में बजरंग दल पर इम्तना आयत करने के वादे से नाराज बीजेपी और बजरंग दल के कायदीन व कारकुनान ने एहतजाज दर्ज करवाने आज आदिलाबाद में कांग्रेस पार्टी जिला सदर साजिद खान के घर के पास हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे। हालांकि आदिलाबाद जिला कांग्रेस पार्टी सदर साजिद खान ने नई सियासत का दरवाज़ा खोलते हुए अपनी रिहायशगाह के सामने हनुमान चालीसा पढ़ने वाले बीजेपी, बीजेवाईएम और बजरंग दल के अकीदतमंदों को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए हरी चटाई बिछाते हुए खुश्क मेवेजात, पीने का ठंडा पानी और खाने का इंतज़ाम करते हुए इस्तकबाल किया। ताहम पुलिस ने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आने वाले बीजेपी, बीजेवाईएम और बजरंग दल के कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए 1 टाउन पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। घर में बरकत आना बोल के पढ़ाते और महल्ले में मेरे महल्ले में मेरे हिंदू भाई हनुमान चालीसा, यहाँ की दलिंदरी जाना, वार्ड की और आदिलाबाद की दलिंदरी जाना बोल के हनुमान चालीसा पढ़ाते। कांग्रेस पार्टी पूरी उनका स्वागत करी, यहाँ तक के पुलिस वालों को बोली वेलकम है या ग्रीन मैट डाल के है उनका सारा इंतजाम करे। जो पॉलिटिकल को गलत तरीके से इस्तेमाल कर ले रहे बजरंग दल वाले होंदो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन होंदो, कांग्रेस पार्टी सिर्फ उन्हीं के खिलाफ है। जो लोग राम के भक्त है, जो लोग हनुमान के भक्त है, जो लोग अल्लाह को जो सो मानने वाले हैं, जो लोग क्रिश्चियन हैं और भी सरदार जी और जो जात वाले हैं, कांग्रेस पार्टी कभी किसी के खिलाफ नहीं है। धर्म का नाम बोलकर इस्तेमाल कर गलत प्रचार करने वालों के कांग्रेस पार्टी खिलाफ है। हमेशा कांग्रेस पार्टी जिला अध्यक्ष का घर खुला है, आप कभी भी आइए। आज कॉल लगाए तो पुलिस वाले आपको रोक लिए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा मोस्ट वेलकम है। आप कभी भी मेरे घर के पास आ सकते, आपका मैट के साथ हर तरीके के साथ मेरा स्वागत है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा बीजेपी का है, उस नारे के खिलाफ ये बोलना चाहता हूँ। आज बच्चियाँ हमारी खिलाड़ियाँ दिल्ली में जंतर मंतर पे कई दिन से धरना कर रही है, इंसाफ की दुआर कर रही है। बीजेपी के मिनिस्टर जो सो उनके साथ छेड़छाड़ करे, उनको गलत तरीके से बच्चियों के साथ बिहेव करे बोल के रो रहे वो लोग। दूसरी जानिब आदिलाबाद जिला मरकज में एआईसीसी मेंबर गणरत सुजाता की रिहायशगाह पर बीजेपी की रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर की हिदायत पर हनुमान चालीसा पढ़ी गई। इस मौके पर आदिलाबाद बीजेपी की रियासती इंतजामी कमेटी की रुकन सुहासिनी रेड्डी ने कहा कि कर्नाटका असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के तैयार करदा मंशूर में बजरंग दल पर इम्तना आयत करने की वो सख्त मजम्मत करती हैं। बाद पुलिस ने सुहासिनी रेड्डी और दीगर कायदीन कारकुनान को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। कांग्रेस पार्टी राजकीय दुरुद्देशंतो बजरंग दल निषेधिస్తామని చెప్పి ప్రకటించి మరొకసారి ఈ దేశంలో విభజించు పాలించు అనే సూత్రాన్ని బ్రిటిష్ వారి పాలసీని అమలు చేస్తున్నదని చెప్పి మరొకసారి నిరూపించుకున్నది। సర్వే జన సుఖినో భవంతు అని చెప్పే ధర్మం హిందూ ధర్మం। అందరినీ కూడా అంటే శాంతి మంత్రం పఠించే హిందూ ధర్మం, ప్రపంచ శాంతిని కోరుకునే హిందూ ధర్మంలో పనిచేస్తున్న
హిందూ సంఘాల మీద, ఆర్ఎస్ఎస్ మీద అనేక సార్లు విషం చిమ్మడమే కాకుండా హిందూ ఉగ్రవాదాన్ని తెరపైకి తీసుకొచ్చి హిందూ ప్రజల మనోభావాలను గతంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ జాతీయ నాయకులు ఒక మచ్చ తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇది సహించేది లేదు. కేవలం రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఈ రకమైన నిషేధాలు ఈ దేశంలో ఎప్పటికీ కూడా అమలు కావు. బ్రిటిష్ వాళ్ళనే ఎదుర్కొన్న హిందూ దేశము భారతదేశము ఎప్పటికీ కూడా హిందూ దేశంగానే ఉంటది. మీరు బజరంగ దళని నిషేధిస్తామంటే ఈ దేశం నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీని నిషేధించాల్సిన అవసరం కూడా వస్తుంది. అయితే ఈరోజు కేవలం ఎన్నికల కోసం మాట్లాడడం కాకుండా ఈరోజు ఈ దేశంలో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఇంటింటికి మరి కాషాయ దళం తయారవుతుంది. ఈ దేశంలో వానర సైన్యం తయారవుతుంది. గల్లీ గల్లీలో శ్రీరాముని భక్తులు వానర సైన్యము బజరంగ బలి తయారవుతున్న నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రీరామ్ అనే నినాదంతో బజరంగ బలి నినాదంతో ఉలిక్కి పడుతుంది. ఇలా మీకు ఎందుకంత భయం? ఈ దేశంలో రాజకీయాలు ఒకవైపు, మతాలు ధర్మాలు ఒకవైపు అయినప్పటికీ ఈ రెండింటిని కలిపి రాజకీయ లబ్ధి పొందాలనుకుంటున్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి కర్ణాటకలో ఖచ్చితంగా బుద్ధి చెప్తారు. హిందువులు ఎక్కడా కూడా ఊరుకోవడానికి సిద్ధంగా లేరు. ఇది ఉన్నది మోడీ యుగంలో ఉన్నాము. హిందూ ధర్మం మీద విషం చిమ్మి లబ్ధి పొందాలనుకుంటే సహించరాని విషయం. ఎక్కడా కూడా దీనికి తగిన ప్రతిఫలం మీకు దక్కుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో आदिलाबाद जिला कलेक्टर राहुल राज ने कहा कि बरखी हादसात पर काबू पाने के लिए सभी को हिफाजती इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने आज जुमे के रोज़ जिला परिषद कॉन्फ्रेंस हॉल में बरखी तहफ़्फ़ुज़ हफ्ते की तक़रीबात के एक हिस्से के तौर पर सारिफीन और बरखी अमले के लिए मुनक्किदा बेदारी प्रोग्राम में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने बिजली की बचत के साथ साथ हादसात से बचने के लिए मुनासिब एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि शहरी और देही इलाकों के सारिफीन और किसानों को हिफाजती हिदायत पर अमल करने और हादसात से महफूज रखने को यकीनी बनाने के लिए आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए जाने चाहिए। हादसात की सूरत में महकमे बिजली के हुक्काम को आगाह करना चाहिए। इस मौके पर ट्रेनिंग असिस्टेंट कलेक्टर पी सिरिजा, SE संपत कुमार, महकमे बरखी के DE सुभाष, बिजली और फायर डिपार्टमेंट के अफसरान, अमला और सारिफीन के अलावा दीगर मौजूद थे। कंपल्सरी మనకి వర్క్ లోడ్ అనేది కంపల్సరీ పెరుగుతుంది. వర్క్ లోడ్ అనేది పెరుగుతుంది, ప్లస్ కస్టమర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో పబ్లిక్ నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా పెరుగుతాయి. సో ప్రభుత్వం ప్రతిసారి కూడా 25 అని చెప్తా ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా ఒక 1 అవర్ పోయినా కానీ సో ఇంతకుముందు ఎటువంటి పరిస్థితి ఉందనేది మున్సిపాలిటీలో పవర్ ఇంటరప్షన్స్ జరిగినాయి. చాలాసేపు టైం పవర్ రాకపోతే కూడా వాళ్ళందరూ రెస్ట్లెస్గా ఉండడం జరుగుతాం. సో అది మనం ఆ రెస్పాన్స్ ఇమీడియట్గా చేసి దాని రద్దీతో రీస్టోరేషన్ చేయడం, అదేవిధంగా మన సేఫ్టీ కూడా చూసుకోవడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్రెడీ మీకు స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటాయి. SOP ఆల్రెడీ ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో కంటే SOP మనకి ఎలక్ట్రిసిటీ డిపార్ట్మెంట్లో ఉంది. ఆ SOPని మనం 100% ఫాలో కావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో డిపార్ట్మెంట్లో ఎవరైతే DSN లోపల ఉన్న లోకల్ ఇంజనీర్స్ కానివ్వండి, మళ్ళీ అక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ కానివ్వండి, వాళ్ళందరూ కూడా आसिफाबाद मजलिस पार्टी दफ्तर में श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद होने वाले हिंदुस्तान के हीरो टीपू सुल्तान की बरसी मनाई गई। इस मौके पर आसिफाबाद मजलिस पार्टी के सदर मोहम्मद सलमान खान और दीगर मजलिसी कायदीन व कारकुनान ने टीपू सुल्तान की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए खराज अकीदत पेश किया। बाद अज़ान सदर मोहम्मद सलमान खान ने मीडिया को तफसीलात बताई। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आसिफाबाद AMIM हेड ऑफिस में अपने सदर अलहाज बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर और आसिफाबाद ज़िला के इंचार्ज MLA कौसर मोइनुद्दीन साहब की हिदायत पर आज टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैहि का शहादत का दिन प्रोग्राम मनाया गया है। इस प्रोग्राम में जो है सो हमारे जमात के ज़िम्मेदार सब मिलकर शिरकत फरमाए। और ये हमारे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैहि बहुत बहादुर शख्स थे। अपने हिंदुस्तान के जंग आज़ादी में जो है सो इनका बहुत बड़ा रोल था और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो किए हिंदुस्तान के लिए हम बताना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान। अंजुमन मसाजिद अहले सुन्नत फेडरेशन मरकज़ अहले सुन्नत जमात जामा मस्जिद कागज़ नगर के ज़ेर एहतिमाम एक अज़ीमुश्शान जलसा बउन्वान इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस 17 मई 2023 बरोज़ चारशंबा बाद नमाज इशा कागज़ नगर जामा मस्जिद के अहाते में इनेकाद किया जा रहा है। इस प्रोग्राम में इस्लामिक स्कॉलर हज़रत मौलाना फ़ारूक ख़ान रज़वी नागपुर तशरीफ़ ला रहे हैं।
प्रोग्राम के मुंतज़मीन ने तमाम बिरादरान मिल्लत इस्लामिया से गुजारिश की है कि इस कॉन्फ्रेंस में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए सवाब दायरा हासिल करें। बिरादरान इस्लाम, अंजुमन मसाजिद अहले सुन्नत फेडरेशन व मरकज़ अहले सुन्नत जामे मस्जिद के ज़ेर एहतमाम एक अज़ीमुश्शान जलसा बनाम इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस 17 मई 2023 बरोज़ 4 शुम्बा बाद नमाज इशा जामे मस्जिद के अहाते में इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मुक़र्रिर ख़ुसूसी नेशनल इस्लामिक स्कॉलर हज़रत मौलाना फ़ारूक ख़ान नज़वी नागपुर तशरीफ़ ला रहे हैं। लिहाजा तमाम बिरादरान मिल्लत इस्लामिया से गुजारिश है कि इस कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाकर सवाब दारैन हासिल करें। रियासती वज़ीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी की आज 60वीं सालगिरह तकरीब विकाराबाद ज़िले के कोडंगल टाउन में मार्केट कमेटी की वाइस चेयरपर्सन वाई श्री यादव ने बड़े पैमाने पर मनाई। इस मौके पर केक काट कर सबिता इंदर रेड्डी को मुबारकबाद दी गई। इस मौके पर वार्ड 2 के काउंसलर मधुसूदन यादव, साबिक सरपंच रमेश बाबू, डॉक्टर नवाज और दीगर मौजूद थे। जिला मंत्री మేడం సబితా ఇంద్రెడ్డి గారి జన్మదినం శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ కొడంగల్ మున్సిపాలిటీ నుండి ఈరోజు కార్మికుల మధ్యలో మేడం సబితా ఇంద్రెడ్డి గారి జన్మదినం జరుపుకోవడం చాలా సంతోషకరమైన విషయం. ముఖ్యంగా ఆమె ఇంకా ఉన్నత పదవులు సాధించి ప్రజలకు సేవ చేస్తూ మా అందరికీ కూడా ఆదర్శంగా నిలవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ నిండు నూరేళ్లు ఆమె ప్రజా జీవితం గడిపి ప్రజల మధ్యలో ఉండి ప్రజలకు సేవ చేయాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఆమెకు మళ్ళీ ఒక్కసారి కొడంగల్ మున్సిపాలిటీ నుంచి కొడంగల్ నియోజకవర్గ ప్రజల తరఫు నుండి CCS LB नगर टीम ने भोनगिर पुलिस के साथ मिलकर बरखी ट्रांसफार्मर के कॉपर कॉइल्स की चोरी करने वाले मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से 60 किलोग्राम ट्रांसफार्मर, कॉपर कॉइल्स, 1 लाख रुपए नकद रकम, एक टाटा इंडिका कार, एक पल्सर बाइक, 4 मोबाइल फोन और दीगर सामान जब्त कर लिया। राचकोंडा पुलिस कमिश्नर DS चौहान ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मुलजिमीन से पूछगछ के दौरान 173 मुकदमात का सुराग लगाया। DCP मधुकर स्वामी साहब और एडिशनल DCP श्रीनिवासलू साहब, भोनगिर DCP राजेश एंड लोकल DCP पहाड़ी शरीफ, उन सब ने मिलकर, लेकिन इसमें जो अहम रोल अदा किया है वो क्राइम टीम ने किया है। ये लोग तकरीबन 1 महीने से इस केस पे काम कर रहे थे। ये पहली बार एक ऐसा गैंग पकड़ा गया है जो ट्रांसफार्मर कॉइल की थेफ्ट करता था। उसमें से है जो कॉपर वायर निकाल के फिर उसको जो बाकी एक्यूजन के साथ मिलके फर्नेस में मेल्ट करने के बाद ब्रिक बना के वो बाजार में बेच दिया करते थे। ये एक केस गैंग पकड़ने के बाद जिसमें तकरीबन 7 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हम लोग पकड़ चुके हैं, बाकी 3 मेरा ख्याल है एक हफ्ते के अंदर पकड़े जाएंगे। इनमें से एक यूपी का है, एक उड़ीसा का है, बाकी भी 1-2 लोग लोकल भी हैं। लेकिन इसमें खास बात यह है कि ये लोग अभी तक तकरीबन 173 केसेस में इन्वॉल्व हैं। अभी तक 306 ट्रांसफार्मर्स को तोड़ के उनकी कॉपर चुरा चुके हैं। इस रिगार्डिंग में एक बात मुताल्लिक आपको बताना चाहता हूं कि एक ट्रांसफार्मर कॉइल की थेफ्ट करने के बाद इनको 50,000 से लेके 1 लाख तक की प्रॉपर्टी इनको मिलती है। आदिलाबाद 2 टाउन पुलिस स्टेशन सर्कल इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम ने मीडिया से बात करते हुए अवाम को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया, क्योंकि हाल ही में साइबर जराइम में इजाफा देखा जा रहा है। उन्होंने तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए साइबर क्राइम से जुड़े एक मामले की तफसील बताई, जिसमें एक शख्स के अकाउंट से 4 लाख रुपए गायब हो गए थे। तो उसके ऊपर ने पुलिस में दरखास्त दिए। दरखास्त देने के बाद उसके ऊपर केस रजिस्टर करे टोटल पुलिस में। इसके बाद हमारा SP साहब, हमारा DSP साहब उसका आदेश से हम एक टीम फॉर्म कर दे कि जो बंदा कीजिए। 2 दिन से हमारा टेक्निकल सर्विस टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है उससे मालूम किया हुआ है। वो बंदा ये जो सस्पेक्ट आदमी है ये आदिलाबाद में फिर मालूम हुआ। तो आज सुबह 10 बजे ये रामनगर पे बजाज इलेक्ट्रॉनिक शॉप, ये वहाँ पे ये बंदा मिला। वहाँ पे क्यों बोल तो ये बजाज इलेक्ट्रॉनिक शॉप में भी ये बंदा 1 दिसंबर में दिए एक कस्टमर उस एम्प्लॉय को। दोबारा वो बंदा भी चीट करने के लिए और आया है। तो ये मैसेज आया तो हम उसको पकड़ के इंट्रैक्शन करे तो हमने उसका कबूल लिया। कबूलने के बाद उसको पकड़ के ला के आज पेमेंट प्रिपेयर करके अदालत में पेश करते हैं।
इसके साथ और कौन से सर? उसके बाद उसके जो बंदा शेफ के साथ और एक आदमी है वहाँ पे में बात को बोल के उन्हें अभी फिलहाल फरार में, उसके लिए भी हम सर्च करते पकड़ जाते हैं। पब्लिक के लिए क्या मैसेज है सर आपका? पब्लिक के लिए मैं मैसेज क्या बोलता हूँ, आवाम के लिए किसी को भी नहीं भरोसा नहीं करना। आजकल साइबर क्राइम बहुत हो गए, यही नहीं है अभी नापताल बोल के है, नौकरी बोल के है, ये क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स बोल के है, फेसबुक में लाइव बोल के है, हाँ, और जॉब्स बोल के है, OLX फ्रॉड है, जोमेटो फ्रॉड है। जो भी इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे सही इस्तेमाल करो, इसको गलत इस्तेमाल मत करो। जो आपको समय है तो बंद कर लो इस इंटरनेट को, कुछ अच्छा के लिए काम करो। काली पीली उसको मजाक करे तो ये पैसे पूरा फ्रॉडस्टर बहुत लोग हैं, आपको पैसा चले जाने का है। भीमगल पुलिस स्टेशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आरमूर असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर प्रभाकर राव ने कहा कि भीमगल मंडल के केरीपल्ली गांव में बंतीलाल नामी शख्स को पीट कर हलाक कर दिया गया था। उसी केस के मुतालिक पेशरफ्त पर उन्होंने आज तफसीलात फराहम की। మే 1వ తారీఖు నైటు భీమగల్ శివారు టువార్డ్స్ వేల్పూర్ పోయే దారికి హెచ్పి పెట్రోల్ బంక్ ఉన్నది. దాని ఓనరు రవి తనకి ఒక వెహికల్ ఉన్నది, తోఫా బండి తుఫాన్. ఆ వెహికల్ నైట్లో రెగ్యులర్గా తన యొక్క పెట్రోల్ బంకులో పెట్టుకుంటాడు. 1వ తారీఖు అర్ధరాత్రి చెంగల్ అవుట్స్కట్స్లో ఆదేశాల మేరకు ఎస్ఐ గారు వాళ్ళ టీము అనుమానం వచ్చిన ప్రాంతాలలో వెహికల్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండడం జరిగింది. అదేవిధంగా చెంగల్ అవుట్స్కట్స్లోనే ఎస్ఐ గారు టీము దీన్ని దొరకబట్టడం జరిగింది. వారిని వాళ్ళ టీంని అవలంబిస్తున్నాము. చెంగల్ వీళ్ళ పేర్లు చెబుతున్నాను. ఈ దొంగతనం ఎవరైతే అపహరణ చేశారో నేరస్తులు ఎత్తారి మధు, సన్ ఆఫ్ రాములు, ఏజ్ 20 years, క్యాస్ట్ వడ్డెరా, ఆక్యుపేషన్ ట్రాక్టర్ డ్రైవరు. ఈయన చిన్న కొడప్గాల్ చిన్న కొడప్గాలు విలేజ్, నిజాం సాగర్ మండలం, కామారెడ్డి జిల్లా. ఇంకొక అతను మార్ల గంగన్న అలియాస్ గంగన్న, సన్ ఆఫ్ నాగన్న, ఏజ్ 23 years, క్యాస్ట్ వడ్డెరా, లేబర్ వర్క్, చిన్న కొడప్గల్ విలేజ్, నిజాం సాగర్ మండలం. ఇద్దరు కూడా ఒకటే విలేజ్, సేమ్ క్యాస్ట్. आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म नक्श KTR ने किया सिद्दीपेट जिले का दौरा। हुस्नाबाद में कई तरक्याती कामों में लिया हिस्सा। कर्नाटक के इंतखाबी मंशूर में कांग्रेस ने बजरंग दल पर इम्तना आयद करने का किया वादा। बजरंग दल, बीजेपी और दीगर जाफरानी तंजीमें बरहम। हैदराबाद के गांधी भवन पर बजरंग दल का एहतजाज। TSPSC पेपर लीक मामला। YS शर्मिला ने IT डिपार्टमेंट के खिलाफ बेगम बाजार पुलिस में की शिकायत। वजीर KTR और महकमों के अहदेदारों के रोल की तहकीकात का किया मुतालबा। आदिलाबाद कांग्रेस जिला सदर साजिद खान के घर पर बजरंग दल और बीजेपी का एहतजाज। हनुमान चालीसा पढ़ने पहुंचे जाफरानी तंजीमों के कारकुनों का साजिद खान ने किया इस्तकबाल। खुश्क मेवेजात, ठंडा पानी और खाने का किया इंतजाम। बरखी ट्रांसफार्मर के कॉपर कॉइल्स की चोरी के आदी मुजरिमीन गिरफ्तार। CCS LB नगर और भोनगिर पुलिस का कारनामा। 60 किलोग्राम ट्रांसफार्मर कॉपर कॉइल्स, 1 लाख रुपए नकद रकम और दीगर अशिया जब्त। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। YouTube और Facebook पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।